Dear students, welcome again. This is your man Manju Raga with you, and today we are here to study class 10th mathematics quadratic equation and last exercise. This exercise contains the question bank of language. First of all, we have to read the question, and then finally after making the quadratic we will solve the problems. So let us take the problems from your book 4.5 exercise. Question number 1. The sum of reciprocals of two consecutive numbers is 23 upon 132. So question number first. The sum of reciprocals of two consecutive numbers. The question is saying that this is the sum of reciprocals of two consecutive. तो आप सपोज कीजिए लेट टू कंसेक्यूटिव मीन्स होते हैं लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स टू कंसेक्यूटिव नंबर्स लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x और उससे अगला कंसेक्यूटिव मीन्स होते हैं कंटिन्यूअसली आने वाले. तो ये हमारा x है तो नेक्स्ट क्या आएगा x plus 1. And the question, according to problem, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम है. दिस इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. तो x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x प्लस x प्लस 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x प्लस 1. And this sum is equal to 23 upon 132. So this is the problem. So students, you have seen that in this exercise we have to solve the problems like that. First of all, read carefully what the question try to ask you, and after that, in this way, first of all you have to form the quadratic equation and then the solution of the quadratic. And in solution, it will be your choice. If you want to solve the question with the help of completing the square method, then it's okay. If you want to solve with quadratic formula, then it will be your choice. Or you can solve the problems with factorization method also. So now this is the problem that we are having, and now we are going to solve this problem. Let us move. इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 1. ये हमारा 1 यहाँ पर x प्लस 1 प्लस दिस x इंटू 1, दिस इज इक्वल टू x. दिस इज इक्वल टू 23 अपॉन 132. इन दिस वे वी विल मूव x प्लस x 2x प्लस 1. इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 132. वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. And this x into x square plus x into 1 x, it will be multiplied with 23. So in this way 132 into 2 means 2 2 ja 4, 2 3 ja 6 and 2 1 ja 2. 264x plus 132. This is equal to 23x square, 23x square plus 23x plus 23x. So we can shift every element towards the left side, and we will left with minus 23x square plus 264x. If plus 23, we will shift towards LHS, it becomes minus 23x and plus 132 is equal to 0. This implies minus 23x square plus 264x and minus 23x. प्लस माइनस माइनस और साइन हम रखेंगे बढ़ेगा. तो 4 में से 3 माइनस किया 1, 6 में से 2 माइनस करेंगे हम 4 एंड दिस 241x प्लस 132 इक्वल टू 0. So this is our given quadratic.
क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चॉइस है. फर्स्ट you can check if you can take common from all the three terms, then you can take common from three terms, and if you want to take the minus sign common, then it will left with 23x square minus 241x minus 132 equal to 0. So for solving this problem, you can use completing the square method, factorization method, and quadratic formula also. So I think quadratic formula will be suitable here. So comparing it with ax square plus bx plus c is equal to 0. कंपेयर करने जा रहे हैं a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 23, b हमारा यहाँ पर आने वाला है x का कोफिशिएंट -241, c हमारी कांस्टेंट टर्म -132. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो -b मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये हमारा -b की जगह पे -241 रखने जा रहे हैं हम. प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स -241 का स्क्वायर माइनस 4ac. 4 into a means 23, c means minus 132 upon 2 into a की वैल्यू हमारी 23. So I think now the simplify, you can do this simplification by yourself. Simplification and calculation part will be for the students, right? Now this is the process that we have adopted. First of all, we should read out the question properly and try to understand the question, and after that form this type of, according to problem, what the problem is asking, and then proceed in this way and choose your choice method to solve the quadratic, to finding out the roots. So that's all, and now we will take next problem. In question number 2, the question is asking that divide 51 into 2 parts whose product is 378. Now divide 51 into 2 parts और 378 आना चाहिए. 378 क्या आना चाहिए? Product. Yes, product. So let's erase the first question. Now the question is saying that we have to divide 51 into 2 parts. 51 के ऐसे 2 parts हमें करने हैं जिनका हम प्रोडक्ट लें तो 378 आए. तो हम मान सकते हैं लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स. अगर एक पार्ट x है और दोनों का सम 51 है तो दूसरा पार्ट हम क्या ले सकते हैं? सेकेंड पार्ट 51 माइनस x. अगर एक नंबर x हम मान के चल रहे हैं, दोनों का सम 51 है, देन सेकेंड पार्ट विल बी 51 माइनस x. एंड द क्वेश्चन इज गिवन according to question, according to problem, product x into 51 minus x, this is equal to 378. So x into 51, this is 51x minus x into x square, this is equal to 378. This implies माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम पॉजिटिव बनाए, साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस 51x. फर्स्ट वी विल शिफ्ट ऑल दीज थिंग्स टुवर्ड दिस साइड. 51x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 378 इक्वल टू 0. In standard form, we want this at the first place. So minus x square plus 51x minus 378 equal to 0. So we can take minus common from all the three terms and we will shift that minus 12 RHS, it becomes 0.
So we will left with x square plus 51x, sorry, minus 51x plus 378 is equal to 0. तो इस तरीके से अब आपके पास फिर से एक क्वाड्रेटिक आपको मिल चुका है जिसको आप सॉल्व करना चाहें किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. 51x plus 378 is equal to 0. कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. ABC की वैल्यूज मिलेंगी, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फैक्टराइजेशन के लिए इसका आप 378 2 1 8 just 16 90 and now it's 3 6 is 18 3 3 is 9 3 2 just 6 3 1 just 3 3 7 just 21. ये हमने मिडिल टर्म देखो. हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन में कि कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ क्या है 1, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 378. तो हमें चाहिए प्रोडक्ट a से. सबसे पहले हम a इंटू सी करेंगे. 1 इंटू 378 ये हमें मिला 378. इस AC प्रोडक्ट को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि हमें यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करके हमें 51 चाहिए, माइनस 51 चाहिए लेकिन प्लस कर. वी विल सी ऑन दिस साइन. ये साइन प्लस का है, दैट मीन्स वी वांट आफ्टर एडिशन द मिडिल टर्म. तो 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है और अब आप देखिए किस तरीके से आप ऐड करें ताकि आपको 51 मिले. 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 21 नहीं आएगा. 2 3 जा 6, 6 3 जा सेम थिंग. 7 2 जा 14, 14 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 3 जा 27, 7 2 जा 14. तो ये भी हमारा सब कुछ 11 हो गया. 7 3 4 41 आ रहा है, 51 नहीं आ रहा है. So in this way we can solve 51. What we want is this, right? 51. Yeah, this is 51. So we want 51. So try again. 3 2 ja 6 and 6 7 ja 42. 3 2 ja 6 and 6 7 ja 42 and 3 3 ja 9. 9 और 2 हमारे पास क्या आने वाला है? 11 और 51. Yes, this is right. So we can split into 2, 42 and 9. इन दो पार्ट्स में अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास सम 51 आने वाला है. सो लेट्स राइट एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस 9x प्लस 378. अच्छा, अब आप देखेंगे कि हमने दोनों को माइनस लिया है और दोनों को माइनस लेने का रीजन क्या है हमारा, क्योंकि दोनों हमारे ऐड होके साइन माइनस का आएगा. माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन हमारा माइनस का रहता है, इसलिए हमने ये किया है. तो अब दिस इज इक्वल टू 0. आगे बढ़ेंगे. x कैन बी टेकन आउटसाइड. वी विल लेफ्ट विद x माइनस 42 इनसाइड. इफ वी विल टेक माइनस 9 हियर then again we will left with x minus 42 inside and that is equal to 0. x minus 42 यहाँ भी है, x minus 42 यहाँ भी है. From these two terms again we can take x minus 42 outside and inside we will left with x minus 9 equal to 0. If the product of two terms is equal to 0, that means either this is equal to 0 or this part is equal to 0. So if x minus 42 is equal to 0, then x is equal to 42. And x minus 9 अगर हम 0 रखते हैं तो x is equal to 9. Means we are having two roots, two distinct roots, 42 and 9. तो ये तो क्वाड्रेटिक के रूट्स हुए, बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें दो पार्ट्स करने थे 51 के, जिनके दो पार्ट्स में उनका प्रोडक्ट हमारा 378 आता है. सो वी आर हैविंग
अगर हम 42 को फर्स्ट पार्ट लेते हैं तो देखिए x को 42 मान के हम यहाँ से माइनस करेंगे, हमें क्या मिलने वाला है? 51 में से 42 माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा? माइनस करके देख लीजिए, 51 माइनस 42, 11 में से 2 गए 9, और अगर आप 9 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 42. मीन्स दीज आर द टू पार्ट्स whose product will be 378. So in this way you can solve the quadratic problems related to the word problems. So I am taking one more question to make this concept more clear to you, and after that I will stop here. More problems will be solved by you. So third question, the sum of squares of 3 consecutive odd numbers. Means now we are having 3 consecutive odd numbers and the sum of squares is 875. 875. आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 3 consecutive odd numbers. का odd numbers हमारे पास 2 into x plus 1 टाइप के होते हैं, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स इवन होते हैं और उनमें जैसे ही 1 ऐड हुआ वो क्या बन गए? odd. तो एक हमारा 2x plus 1 है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 2x plus 3, नेक्स्ट 2x plus 5. इस तरीके के नंबर हमारे odd नंबर्स हैं. तो ये क्यों odd कंसीडर किया है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे इवन नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2. यानी ये x कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हमारा ये हो, इवन बनने के लिए क्या होना चाहिए? ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए. तो जैसे ही हम 2 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा इवन हो जाता है, और इवन में 1 ऐड होते ही वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ओड. ओड नंबर जो है वो हमारा इससे नेक्स्ट होता है, तो 2x plus 1. तो ओड हमारे कंसेक्यूटिव 3 ओड नंबर्स हैं. तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स. इनके स्क्वायर्स का सम. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स. इनका स्क्वायर्स करेंगे 2x plus 1 का स्क्वायर प्लस 2x plus 3 का होल स्क्वायर, 2x plus 5 का होल स्क्वायर. इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो है 875. So now we will move forward. This is according to problem. According to problem, इनके 3 consecutive odd numbers और उनके स्क्वायर्स का सम 875. तो ये हमारे पास, हम ओपन करेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 1 4x प्लस, इसको भी हमें प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x. इसका भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 to the 20x. This is equal to 875. राइट. तो इस तरीके से हमने ये a प्लस बी के होल स्क्वायर्स को ओपन किया है. अब हम जितने भी स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको सबको आपस में ऐड करेंगे. 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, व्हाट इट बिकम्स? 12x स्क्वायर. 4x प्लस 12x 16x and 16 plus 20. 16 plus 20, that is 36. 36x. Now this 1 plus 9 10, 25 plus 10 35, और ये 35 हमारा जो है वो प्लस 35. If we will shift this towards LHS, it becomes minus. तो ये हमारे पास जो है ये. अब हम प्लस और माइनस इनको क्या करने जा रहे हैं? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. तो हम साइन बड़े का रखेंगे लेकिन करेंगे माइनस. 12x स्क्वायर प्लस 36x माइनस करने जा रहे हैं. 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 माइनस किए 4 और 8
माइनस के साथ हमारे पास बच गया। इफ समथिंग इज कॉमन among these three terms then we can take it outside as a common। आप देखिए ये अगर हमारा 12 से 12 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x क्या है 36 माइनस 70 दिस इज इक्वल टू 0। तो 12 जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं बाहर और इस 12 को अगर हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं देन इट बिकम्स 0 मींस वी विल लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बनी है वो ये है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो अगेन हमारा वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया है कि हम इसे किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। I want to solve it with prime factorization or quadratic formula. It is my choice. So let's compare. A x square का कोएफिशिएंट a 1 और c हमारे पास है -70। तो a इंटू c हमारा प्रोडक्ट जो आ गया है वो आ गया है 1 इंटू -70 दैट इज इक्वल टू -20। यानी -70 का अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसी दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है जिनको सब्ट्रैक्ट करके हम 3 ला सकते। तो 70 को हम 7 10 2 5 इस तरीके से हमने ब्रेक किया। सब्ट्रैक्ट करके हमें लेकर आना है 3। 5 टू जा 10 और 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो इट्स सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारा साइन प्लस का है इसलिए जो हम ये जो फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं AC के दो 5 टू जा 10 और 7 जो दो फैक्टर्स हमने बनाए हैं उनमें से हम बड़े के साथ प्लस का साइन रखेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट में प्लस चाहिए। इसलिए प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा जो है अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x अंदर बच गया प्लस 10। वी कैन टेक -7 फ्रॉम दीज टू टर्म्स कॉमन, x minus x plus 10 will be left inside. So now again from these two terms this thing is common, so we can take it outside. X plus 10 will be taken outside, we will left with x minus 7, this is equal to 0. तो अगर x plus 10 को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलती है -10 और अगर x minus 7 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है 7। बिकॉज if the product of two terms is 0 then either first part should be equal to 0 or second part। तो फर्स्ट पार्ट 0 अगर होता है तो हमें x की वैल्यू -10 मिल रही है और अगर हमारा सेकेंड पार्ट 0 है तो x की वैल्यू 7 मिल रही है। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वी वांट 3 कंसेक्यूटिव, चाहिए क्या हमें 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। तो हम सबसे पहले इस x की एक वैल्यू को यूज करके 3 कंसेक्यूटिव ओड निकालना चाहें तो हमारे पास देखो दिखाई दे रहा है कि ये हमारा इवन नंबर है। सो भी इवन नंबर को अगर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा -20 और -20 प्लस 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा -20 प्लस 1 मीन्स -19 और -19 में हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पे -20 में +3 हो रहा है यानी अगली टर्म क्या आएगी -19 और +3 -17। इस तरीके से हम 7 को यूज कर सकते हैं। 7x की वैल्यू अगर लेते हैं तो 7 2 जा 14, x को हम क्या ले रहे हैं हमें 2x + 1 की वैल्यू चाहिए, 2x + 1 3 की वैल्यू और 2x + 5 क्योंकि ये तीन हमने ओड इंटीजर्स माने थे। फाइनली हमें इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है तो x की वैल्यू 7 पुट करते जाइए, तीनों की वैल्यू निकालते जाइए। अगर यहाँ 7 रखते हैं 7 2 जा 14, 2 × 7 + 1, यहाँ पे भी 2 × 7 + 1, 2 × 7 + 1। तो क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं हमारे? फर्स्ट रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे 14 + 1 15, 14 प्लस इट्स +3, इट्स +3 एंड हियर इज +5। तो ये 14 में 3 प्लस कर दीजिए आप
नेक्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी 17, नेक्स्ट टर्म 19। तो ये हमारे लगातार 3 जो है वो ओड इंटीजर्स है जिनके स्क्वायर्स का अगर हम सम लेंगे तो 875 आएगा। इस तरीके से हमने x की वैल्यू -10 रख के और x की वैल्यू 7 रख के इस तरीके के 3 ओड इंटीजर्स बताए। So my dear students, in this way you can solve more and more word problems related to the quadratic equations with your choice process. Either it will be solved by your method of prime factorization, or you can solve it by completing the square method, and last one is quadratic formula method. So thank you my dear students, that's enough for today.